We are traveling to Khwata village, which is the last village, Mete village of near the Indo-Myanmar border, and this village is, we are passing through jungles here, and this village is very special because this village is a Mete village surrounded by Kuki villages, and they are living together in this area without any violence or conflict, and which is the reason we have visited this remote area within the jungles, and we are trying to speak to the public there and to know how they are living inside these challenging terrains. We are traveling in the length and breadth of Manipur, and today we are in the Khwata village. This village is very special because this village has set an example of living harmoniously amid the prevailing situation in Manipur, which has seen violence for more than 20 months. Today we met the villagers of the Khwata village, and we interacted with them. We spoke to them. They have shared their life, how they are living in this village. We have spoken to the women. They are, amid these challenges, they are making their favorite dishes. And this village is unique because it is one of the last villages near the Indo-Myanmar border, and last Mete village, you can say, and it is surrounded by different villages of different communities such as the Kuki, Nagas. And however, the interesting situation is that it has continued to stay peacefully. The locals here credit this to the security deployment, secondly to the mutual understanding that the communities have here, which has helped them to live peacefully. And we are seeing that they are very hopeful that peace will happen in all of Manipur soon, which will bring back the normalcy in the state. So that has been the positive attitude of the locals here, which has led to very positive developments here, in the sense that we have not seen a major conflict in this area, and people have tried to live harmoniously. And that is what we have been seeing after our visit in this area, where we met all the locals of the village. They have their own problems, they have some of their problems, but that can only be solved through dialogue. And we have to give credit to the role of the district administration as well as the Assam Rifles and other agencies working here, who have tried their best amid their limitations to help the people living here in this area. Today our team is visiting a very remote village called the Khwata village, situated near the Indo-Myanmar border in the Tengnoupal district of Manipur, and we are joined by the secretary of the village. This village has seen a very unique transformation, in the sense that this is one of those areas which has not seen that level of conflict which is ongoing in Manipur for more than 22 months. And we are going to speak with the villagers. You can see the village life is a small shop here, is selling snacks. This is very popular snacks. इसका नाम क्या है जो बेचते हैं वहाँ के? Sinju. Sinju बोलते हैं ना? हाँ जी. So Sinju, they are selling Sinju here, and we're going to speak with the locals and the villagers here how life has been. You can see a very cute girl riding a bicycle. So that is the environment here in this village. Compared to other places of Manipur, you can see a very positive environment here. The villagers have welcomed us. And सर आपसे ये बात करेंगे, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम टी संजय सिंह है। ये मैं बस्ती का सेक्रेटरी। बस्ती का सेक्रेटरी, क्वाता विलेज। जी क्वाता। तो क्वाता विलेज का लोग जब बात करते हैं, पहले तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे फेमस है बैम्बू, बहुत फेमस है, आपको तो पता ही है। हाँ जी। आप ही इसके यहाँ के आप लोगों ने शुरुआत किया, और एक तो फेमस है, बहुत सुंदर है, नेचुरल है। हाँ। लेकिन सबसे और एक खास बात जो क्वाता, अभी बहुत जगह पे क्वाता के बारे में लोग बोल रहे हैं कि क्वाता में मणिपुर के अलग जगह से कम यहाँ पे वायलेंस देखा गया है, और लोग जो है कंपेयर टू अदर जगह से पीसफुली रह रहे हैं। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट अभी है। 20 महीने से जो है मणिपुर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग ऐसे रह रहे हैं, आराम से रह रहे हो, तो क्या अभी वर्तमान का क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा हमें बताइए। वैसे बोलने से तो हमारा बस्ती के लिए तो एनवायरनमेंट शुरू से ऐसा नॉर्मल टाइप है, लेकिन लफड़ा तो मणिपुर में चल रहा है अभी। दो कम्युनिटी के बीच हम लोग भी
बिलोंग्स करते हैं एक कम्युनिटी में, मैते कम्युनिटी में। तो फिर भी हम लोग इसलिए एक तरह में कहने से तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि हमारा इतना पुराना साल से हम लोग रह रहा है। उसी समय में भी ये बस्ती ऐसा आसान से ये सब तोड़ फोड़ नहीं किया। इसका वजह से हम लोग माना जाता है कि हमारा भगवान की वजह से ही हम लोग यहाँ पे इस गांव में कुछ तोड़फोड़ अब तक नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ है। थैंक गॉड प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज़ द बाइक विच इज़ यूज बाय वन ऑफ द विलेजर्स। दिस इज़ अ वेरी फेमस बाइक इन म्यांमार। सो यू कैन सी हाउ क्लोज म्यांमार इज। ये तो म्यांमार में चलता है राइट। ये तो ये देखिए द गांव द विलेजर्स आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी पॉपुलर इन म्यांमार। बट अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आपने बहुत अच्छा एक बात बोला कि यहाँ पे वायलेंस कम हुआ है और लोग अलग जगह से आराम से रह रहे हैं। आपके ऐसे पहले, इसके पहले, वायलेंस के पहले कैसे रिश्ते थे आपके और कुकी भाइयों में, कैसा आप लोगों का संबंध था? जी हम बता दूंगा। ये सच में ये क्या कहूँगा कि सच में हमारा ये बस्ती सुरक्षित अभी तक ऐसा सुरक्षित है। इसका कारण 2-3 पॉइंट्स है बस्ती की तरफ से। ऐसा फर्स्ट पॉइंट में हम बताना चाहूँगा कि ये हमारा सिक्योरिटी पॉइंट बहुत अच्छा किया है हमारा, खास करके असम राइफल्स। और अभी थोड़ा महीने के बाद जैसे स्टेट फोर्स आके हम लोग को सुरक्षा के लिए रखा गया है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 हम बताना चाहता हूँ कि ये हमारा आसपास के लोग नेबरिंग विलेज में हमारा जितना भी बस्ती है, ये हम लोग मिक्सअप कम्युनिटी है। यहाँ पे मिलजुल के रहता है। एक क्या क्या कम्युनिटी है, क्या क्या जाति है? नागा, मरिंग नागा एंड कुकी ट्राइब्स। तो हम लोग आसपास हमारा नेबरिंग विलेज सब वो है नागा के नेबरिंग में कुकी नागा रहता है। कुकी नागा रहता है। अच्छा। और ये अकेला पहाड़ी इलाका का मैतेई बस्ती बोलने से तो ये आखिरी भी है। और एक बस्ती, ये सिर्फ बस्ती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये आखिरी मेते बस्ती है टेक्नोपाल इस एरिया में, हम बोल सकते हैं ये बोल सकता है। और कितना घर यहाँ पे है, कितने लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारा 87 हाउस होल्ड है। 87 हाउस होल्ड, मतलब 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 437। सो ऑलमोस्ट 500 लोग रहते हैं इस बस्ती में। और अभी तक सब अच्छे शांति से रह रहे हैं। हाँ, शांति से रह रहा है। और आपका कैसा कम्युनिकेशन रहा होगा कुकी भाइयों के साथ? क्या आप लोग अभी भी बात करते हैं? क्या क्या अभी स्टेटस क्या है, लेटेस्ट स्टेटस? क्योंकि 20 महीना हो गया है कॉन्फ्लिक्ट में, अभी क्या स्टेटस है? स्टेटस अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो हम लोग बहुत रिश्ता अच्छा है। पहले से हम लोग बाय लोकेलिटी ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग रह रहा था पहले से। अभी भी ऐसा एक तरफ में इतना लफड़ा होने से भी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठा है। कुकी हमारा नेबरिंग विलेज का कुकी का चीफ हो, चाहे दोस्त लोग हो, वो लोग ने भी हम लोग को एक तरफ में एक नज़र में भाई के तौर पे मान के हो या कुछ ऐसा तौर पे हम लोग मान के अभी तक वो लोग ने नज़र ऐसा बुरा नज़र भी नहीं देखा है। So this can be a very good example in Manipur that people residing, different communities are residing in this area near the Indo-Myanmar border, and so far it has been relatively peaceful thanks to also the efforts of the security agencies such as Assam Rifles, and also the district administration of Tengnoupal has also played a very key role in providing them with all the facilities because they are staying in a very remote area. बहुत अंदर का एक एरिया है, सरकार से भी बहुत मदद चाहिए आप लोगों को रहने के लिए, तो वो भी मिल रहा है। मैंने यही बात किया है। ठीक है, अभी गांव वालों के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या आप लोगों का चल रहा है। लेट्स मीट द विलेजर्स एंड विच have a chit chat about how their lives have been in the ongoing conflict that we have seen in Manipur. Sitting with the villagers of Khwata, and we are talking to them about the good old days when things were normal here and people used to roam about, go about different places. And we're just talking about the nostalgic element of Manipur because at a time before this entire conflict began, people used to live very peacefully, happily. They used to play football together. In this area, there used to be a very famous bamboo fest which used to happen. A lot of people used to come to this area and this area used to flourish a lot. Although now it is peaceful, but still we are talking to the people about the good old days. संजय जी, पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे
और आप लोग बेम्बू का फेस्ट भी करते थे और फॉरेनर्स भी आते थे। आपके पास के नागा गांव के लोग भी आते थे, कुकी भाई लोग भी आते थे। तो कैसा माहौल था पहले के टाइम में? पहले के टाइम में तो माहौल बहुत अच्छा था, हम लोग मिलजुल के रह रहा है। वो लोग का फेस्टिवल में भी हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए जाता था। हमारा फेस्टिवल में भी वो लोग ऐसा ही देखने के लिए भी, ऐसा शामिल करने के मतलब पे आते थे वो। तो अभी ये लफड़ा के चक्कर से सब कुछ मूवमेंट छोड़ो, हिलने का भी परमिशन मांगना पड़ता है आज सिक्योरिटी से। आजकल तो ऐसा हालत हो। लेकिन क्या आप कहेंगे कि जो दूसरी जगहों का परिस्थिति जैसा है मणिपुर में देखा जा रहा है कि गोली चल रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके कंपैरिजन में इस जगह का आप कैसा बताएंगे? कैसा यहाँ का सिचुएशन है? यहाँ का सिचुएशन कंपैरिजन करने से तो थोड़ा हमारा बस्ती, हमारा साइड का तो थोड़ा अच्छा है। दूसरा मणिपुर का दूसरा जगह से कंपेयर करने से तो 80% जैसा तो हमारा बस्ती सुरक्षित महसूस हो रहा है हम लोग को। कि क्योंकि अब अभी तक चाहे क्या कौन सा तरीका से हम बता दूं कि हमारा सिक्योरिटी पॉइंट अच्छा है और हमारा नेबरिंग विलेज के साथ रिश्ता अच्छा है। हम लोग एक दूसरे को लोकलिटी भाई भाई मान के जा रहे हैं। हम लोग ने भी वो लोग को हमारा पुराना भाई है, पुराना दोस्त है, पुराना रिश्तेदार है, ऐसा मान के जा रहा है अभी तक। वो लोग को सोच भी यही सेम है हमारा इलाका, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को। आपका नाम सर? बीसी। बीसी। आप तो एक एक्सपीरियंस आदमी है, एजेड आदमी है, आपने तो ये पूरा देखा है एरिया को। बहुत साल पहले 10-20-30 साल पहले यहाँ पे कैसा सिचुएशन था? लोग कैसे मिलजुल के रहते थे? पहला भी हम लोग का एरिया में पीसफुली रहा था, है ना, शांति था पे? शांति था। अभी भी शांति था। नाउ वी आर लिविंग वेरी पीसफुली एंड फॉर द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी Now also you're living peacefully? peacefully. Yeah, and like, do you have friends from Naga areas? Hey, yes, I have. And Kuki areas? Yes, I have. So earlier, where you and those friends used to go out together? Yes, we are doing together playing sport and What sport you used to play? volleyball. Volleyball. So you used to play volleyball together? Yes, sir. There you have it. The connection was there always here. The people used to live peacefully, and that is the reason here we have not seen such a heavy conflict in this area, because of mutual understanding and respect the people have for each other. And we have been speaking to the villagers. They are also saying the same thing, that due to that understanding, the situation is better. Also, the security forces such as Assam Rifles have also helped the villagers to stay here very peacefully. And we spoke with a very senior person here who also talked about how peaceful and lovely this place used to be. आपका नाम सर? नाम जस्ट बताइए, कोई बात नहीं, don't be shy. चौबा। आपका नाम, जस्ट नाम? बीरेन। सो मेजरली सारे लोग जो है यहाँ पे मेते संप्रदाय के लोग हैं। और यहाँ पे कितने घर होंगे, यहाँ पे कितने लोग होंगे? हमारा बस्ती का 87 हाउस होल्ड है। 87 हाउस। टोटल मेल फीमेल मिलके 437 पॉपुलेशन है। Okay, sir, what will be your request to the government that this about the peace? What is your request? My request is that we want to peace as soon as possible. Yes. So there you have it. They have requested that they want peace. Everybody wants peace in Manipur, right? Because to go back to the normal times, you need peace, and that has been reflected here by the public. All of them want peace. All of them want the conflict to end, so that everyone can go back to their normal lives. संजय जी, और एक बात पूछेंगे आपसे कि यहाँ के गांव के बच्चे जो हैं अभी कहाँ पे स्कूल कहाँ जा रहे हैं? हमारे हाँ यही दिक्कत हो रहा है कि हमारा बच्चे लोग दूसरा जगह माने इम्फाल, कक्सिंग एंड थौबल, इस बाहर में हम लोग फर्दर स्टडी के लिए भेजता था। अभी भी वही वहाँ पे वही। ठीक है। आपका नाम सर? You have a lovely smile. My name is Jami Singh. So you are here since a long time. You are local here? Yes. So earlier, how was the situation here? Was it peaceful, happy?
ये सीजन है ना, मैं संडे में चर्च में जाता है, भगवान के साथ में प्रेयर करता है। कुकी और मैते पहले का शांति है ना, उसी शांति आने का फास्टिंग करने से प्रेयर करता है। So you pray to bring peace to Manipur. ब्रिंग टू मणिपुर, कुकी और मैते भाई भाई है ना, इसलिए पहले का भाई भाई प्यार करता है ना, करने के फास्टिंग करने से प्रेयर करता है। फास्ट करके प्रेयर करता ताकि कुकी मेते फिर से ये भाई भाई करने का। See, this is the spirit of the people here. They are going to church on Sundays. They are praying also, and this is a mixed population. यहाँ पे mixed population है, हिंदू भी है, क्रिश्चियंस भी है, कुकी भी है। कुकी भी है, वो तो है, और मेते में हिंदू क्रिश्चियंस भी है, हिंदूज भी है, राइट? तो आप लोगों का प्रेयर कहाँ पे? इधर ही मंदिर है? हमारा बस्ती के बारे में हम ये आधा क्रिश्चियन है, आधा हिंदू है, 50-50 है। तो हम लोग क्रिश्चियन लोग चर्च में जाता है, हमारा हिंदू लोग क्या मंदिर में जाता है। यही सेम है। So we just spoke to all of these villagers, and they are telling us that a lot of unity has been there in this village. Now also they are united because we have not seen any violence in this particular area, but they are hopeful and praying that things improve in all of Manipur so that people can go back to their normal lives. As we are showing the village life, we are in a stall here. Didi, क्या बना रहा है आप? चटनी, हाँ, चटनी, लोकल चटनी थोड़ा दिखा दीजिए हमारा बना के। This is the village life. This they are living normally here. They are making this snack, मणिपुरी चटनी। इसको क्या बोलते हैं? सिंजू। हाँ, ये इम्फाल में भी मैंने देखा है, लोग बनाते हैं। आप लोग भी बनाते हो? ये मेते लोग ज़्यादा बनाते हैं, राइट? हाँ, मेते लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो you can see here they are making this beautiful chutney. It's a very spicy also, ना spicy होता है थोड़ा? स्पाइसी होता है। Spicy chutney, and as we speak with the villagers here, they are showing us around the entire village. People are living here in a very comfortable way. They are living under the protection of the security forces, and whatever they can do in this area, they are trying to do it. They are making us this beautiful chutney. And ये बताइए, यहाँ पे आप लोग जो आपका पास टाइम कैसे स्पेंड करो, क्योंकि अभी तो आप इधर ही हो, तो कैसे टाइम स्पेंड करते हो आप? टाइम स्पेंड हम लोग ज़्यादातर हम लोग खेती करता है। खेती सीजनल लेबर है। खेती इधर ही खेती, हाँ, जूम कल्टीवेशन टाइप। कहाँ पे है? इस एरिया में ही है? एरिया पे जंगल के अंदर है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता खेती करने का? अभी ये लफड़ा 2 साल से हम लोग खेती करने का मौका भी नहीं मिला है। हम लोग बस्ती से बाहर जाने का भी अनुमति लेना पड़ता है, हम लोग हाल चाल देखना पड़ता है, इसलिए बंद कर दिया खेती 2 साल की तक। हाँ, प्लास्टिक ले होंगे। हाँ, तो as you can see here, our lady has prepared a beautiful chutney, and this is the situation here in the village. ये बच्चे यहाँ पे कितने होंगे? बच्चे हैं बहुत? कुल मिला के अभी प्रेजेंट चिल्ड्रेन 62 ऐसा। ये आपके यहाँ पे गांव का ही गाँव के ही बच्चे हैं। अच्छा, तो एक और बताइए, आपने एक इंटरेस्टिंग बात मुझे तब बोला कि यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज भी हुआ है, मतलब कुकी शादी की लड़की के साथ भी शादी हुआ है, नागा की साथ शादी हुआ है, तो क्या आराम से रह ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? अभी हमारा बस्ती के अंदर में तो इतना अभी वो इशू नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा बात है ये तो कि आप लोग ने ये किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से रह रहे हैं। आराम से रह। तो ये दिस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। आई विल जस्ट गिव अ टेस्ट कि कैसा रिव्यू है। आप भी खाओ, रिव्यू दो। It's very good, very good. We travel across the village. We meet different people. We are meeting women. We are meeting villagers, elderly. Right now, we are in a house in a community kitchen, and we are speaking with the locals how they're living. Hello, नमस्कार, आपका नाम? जी, मेरा नाम रत्ना, तखिलम्बम रत्ना। ओके, ये पहले बताइए ये क्या है? ये क्या चीज़ हम देखें? ये योंगचाक है। योंगचाक? हाँ जी, ये योंगचाक है। इसमें इस्तेमाल होता है? जी, इसको हम लोग सिंजू खाते हैं, इरुम्बा बना के खाते हैं, और इसको सब्जी भी बनाते हैं हम लोग, टमाटर के साथ भी हम लोग। कहा जाता है कि मेते महिलाएं जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, सही में है? जी, सही है जी सर। तो ये आप बताओ, तो आपका खड़ा ओरिजिनल कहाँ से आप? ओरिजिनल तो एक्चुअली मैं तो मतलब मोरे से हूँ। मोरे से है ना? जी, मोरे से, मतलब शादी तो यहाँ हुआ है, पर मेरा जो पेरेंट्स लोग यहीं के हैं। अच्छा,
तो यहाँ पे आप तो बहुत साल से अभी रह रहे हो शादी के बाद, जी तो यहाँ पे अभी कैसा लग रहा है रह के अभी सिचुएशन? अभी तो मतलब अच्छा लग रहा है फर्स्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं तो मतलब मोरी में बड़ी मतलब बड़ी होने से भी पर यहाँ से अटैचमेंट है हमारा, क्योंकि मेरा पेरेंट्स जो भी हो यहाँ के दादी हो नानी हो सब यहाँ के है। बस ये कि हम लोग मोरी में क्यों रहते हैं बोले से, तो मेरा पेरेंट्स फादर जो है वहाँ पे जॉब करते थे ना, इसलिए तो एक्चुअली मैं यही की हूँ। अभी जो मणिपुर में देखा जा रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोग बहुत परेशान भी है, लेकिन यहाँ पे हम आके देख रहे हैं कि लोग अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आप लोग ये कर रहे हो, जो है जेंट्स लोग भी कर रहे हैं अलग जगह से। यहाँ पे आप लोग क्या ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं? ऐसे बोलने में तो मतलब बाहर का जगह जैसे कि इम्फाल का एरिया, जो रेड लाइन एरिया लोग जो होते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ का कंपेरिजन करने से तो ये हम लोग बस्ती थोड़ा सा सेफ है सर। क्यों बोलने से तो यहाँ पर हम लोग टाइट सिक्योरिटी मिलते हैं। यहाँ पे आसाम राइफल है, बीएसएफ है, आईआरबी है, तो वो लोग ने हम लोग को बाउंड्रिंग मतलब पूरा बाउंड करके अंदर पे हम लोग को सेफ सुरक्षा में रखा हुआ है। तो कंपेरिजन बोलने से तो वहाँ का और यहाँ का बोलने से यहाँ हम लोग थोड़ा सेफ है यहाँ पे। हाँ, तो और बाकी आप लोग क्या खाना बनाते हो? ये इसी तो मच्छी भी बनाते हो? अच्छा। हाँ मच्छी बनाते हैं। मच्छी तो मतलब बहुत किस्म के बनाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बम्बू सूट होते हैं ना, हाँ हाँ हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको सोयबुंग कहते हैं, बुम। तो वो भी मच्छी डाल के बनाते हैं। और उसके मच्छी को हम लोग गा तुई बोल के वो भी बनाते हैं। और उसके बाद में उसको हम लोग उसका जो अंदर का जो पेट होते हैं ना, उसको भी हम लोग अलग से उसका भी अलग से हम लोग बनाते हैं। मतलब किस्म किस्म के तरीके के हम लोग सब्जी बनाते हैं एक मच्छी से। There you have it. Amid the conflict, there are a lot of problems happening in Manipur, but the women in Kwatha village are still finding time and to make the delicious food that they are expert in. They're trying to live a normal life. This is an example that has been set up in Manipur, that how people in this village are trying to live their best even amid the challenges that they are facing and everyone is facing in Manipur. But this is a very good example coming out of positive living amid the prevailing situation in Manipur. We are in Chalwa village. It's a cookie village. You can see here, people are living here so nicely. These are the kids. These are the dogs. Sir, आपका ये बच्चा है? आप you are the village chief. क्या village का नाम क्या है? एल चालवा। एल चलवा। आपका नाम सर? जय हो की जय हो। बढ़िया से आप लोग रह रहे हैं आराम से? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ये तो कुकी विलेज है। आप लोग तो पास में मेते विलेज है कोता, फिर भी एकदम आराम से रह रहे हैं? हाँ, पीसफुली रह रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? नहीं। आप लोग कैसा यूनिटी में रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं? पीसफुल ऐसे रहते हैं। हाँ, और मिलता है जुलता है? हाँ। पहले मिलता था? कैसा अच्छा रिश्ता था पहले? अच्छा रिश्ता था। अभी कैसा है? अभी वहाँ जाने के लिए भी नहीं होता ना। हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हेल्प करते हैं आप लोग? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? How old is she? 5 years. आप लोग का चर्च कहाँ है? हाँ? चर्च इधर ही है चर्च? नहीं नीचे मोड़े में है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे। So there you see, this is a cookie village just adjacent to the Kota village, but and we are traveling in this very interesting area because just near the cookie village we have this Mete village, and this shows you how people are living in this area. They are living together, united, and that is the spirit that we are seeing here.